Good morning all of you. I welcome all of you to the lecture Python programming. In today's lecture we are going to discuss about variable assignment. Hope this presentation is visible to you. Is it visible? Yes, sir. Okay. First, introduction of variable assignment. Variable are nothing but reserved memory locations to store the value. You already know some of the information related to the variable. Variables are nothing but reserved memory location to store the values. This means that when you create variable, you create some space in a memory. As suppose you have created a variable, okay, then this will be created as a memory in the system. You can store the values at the variable a, as you can write int a. A is the variable you have declared here, and you can assign the values as 10 to this variable. When you declare the variable, then there the reserved memory will be created. This means that when you create a variable, you reserve some of the space in the memory location. Directly suppose you have written 10, it will not stored anywhere, then it will not execute. You have to store this 10 value to particular variable, then it will be stored. It required to declare the variable. Based on the data type of the variable, the interpreter allocate the memory and decide what you can store in the reserved memory. You have to allocate the memory as interpreter, and then you have to decide what we can store in that location. As suppose you have declared variable b, then what we can store at the location of a b, anything we can decide, and we can store that with the help of interpreter. Interpreter will help to you to store the data on that variable. Therefore, by assigning different data type to the variables, you can store the integer, decimal or character in this variable. You can also decide here b equal to 10, or instead of b equal to 10, you can put b equal to a also. As you can write b equal to a b c, or you can write a decimal value 10.5 as like. Next one is assigning values to variable. Is it understood to you? Variable means creating a memory location. Variable create the reserve memory in the memory location. Is it understood to you? Yes, sir. Pooja? Okay, then next one is assigning values to variables. The declaration happen automatically when you assign a value to a variable. The equal sign is used to assign the values to the
variable. We just seen this. The operand to the left of the equal to sign and operator is the name of the variable, and the operand to the right of the equal to operator is the value stored in the variable. As you can create a equal to, then the values will be created to the left side of the variable. Like suppose you have created a equal to b, then this a will be act as an operator, or operator is the name of the variable and the operand to write the equal to operator is the value stored in the variable. This left side you can write the values which is going to be assigned to the a or to the right side of the variable. Example. In this example you can see counter. Counter is a integer variable, and you have given values to this counter 100. How you have given values to counter? By assigning, by using the assignment operator, that is equal to sign. Equal to sign we can use for assigning the values to the variable. This is an integer assignment. There is no floating point, so this is the value, integer value, and it takes automatically integer value to the counter. There no need to declare in the Python, but if you use the different language, then there is need to declare the data types. Okay, then miles equal to, this is miles is the variable, and this operator, assignment operator, we can use here equal to assign the values to the miles. What values we are assigning here in this? 1000.0. 1000.0 is the floating value, so we can say this is the floating point. There is a floating point in a 1000.0. Are you getting my point? Yes, Rajeshri? Yes, sir. Then next variable is name, and this name variable given a value. What value is given here to this name? Name equal to, is it visible to you? Yes, sir. Name equal to John, and John. which is written in String. double quotation. Why? Because this is a string. This is a string. Connected characters are there, like J O H N. These, there are 1 2 3 4 characters, and these characters create a single word. So to write the single word, we have to use their data type. Which type of data is there? The string type of a data. So for writing the string type of a data, we can use double quotation, or in Python somewhere we can also use a single quotation to write the string. Okay, and this string value is assigned to the name variable. This is the name variable, and this is the values, and in between there is a assignment operator, that is equal to sign. Once you run this program, you will get the output. What output you will get? To get output like this, you have to write the print function, print statement, then variable name. After print,
variable name. After third print, again you have written variable name. The values of this variable will be displayed once you write this print statement. Here in this, what is the output will be displayed? Here will be displayed 100, 1000.1 and John are the values assigned to the counter, miles and name variables respectively. This produce the output 100, 1000.1 and John. Is it understood? Yes, sir. Then Yes, sir. we will see the program by executing it, because there may be create confusion when you use a multiple assignment. So okay, here we can write the variable like counter equal to 200. 200 is given. Now again we can give the miles equal to 50.11. This is floating. Now we will give the name equal to we have given all these three values to the variable counter, miles and name. How output will be displayed? What we have to write for display the output? Now what we need here to write to display the output? Yes, Rajeshri. Sir, print counter, print miles and print name. Okay. Yes. Then we will try to execute it. Data type. How we will know the data type? We can use typ type. Then counter the data type of counter is displayed here. By using type function you can display the data type. What is the data type of this counter? Is it visible to you, Pooja? Yes, sir. What is it? What is data type of counter? Rajeshri? Number? It is given here in this rectangle. In this rectangle it is given in blue color. What is data type of counter? It is given here. Is it visible to you? Last one. No? Can you zoom this screen? Zoom your mobile Yes, screen sir. and see. What is written in blue color? Class in Class int. int. Integer, sir, integer. Yeah. So the counter's data type is integer, right? Counter is we have given
200 value to the counter. And what is the data type of this 200? It is given by using type, and it is displayed here, int means integer. Okay, now we will check the data type of miles. What should be display? या क्या दिखना चाहिए? क्लास इन कोटेशन, कोटेशन में क्या आएगा? Float. राइट, जोर से बोलो. Float. Yeah, float should be displayed, so you can see the data type of this miles value is float. Now we will check the data type of name. Now what will be displayed? String. String. Yeah, the short form of string is str. String is displayed. Now the values we can display by using the print function. Here for this we are using print. What is value? Counter is the variable. For display the value we need to put here counter. You see 200 is displayed. Again we use print in bracket miles. What will be displayed? What output we will get? Pooja? $50.11. Right. Now print. Rajeshri, what we have to write in this bracket? Name. Print in bracket name. Is it correct? Yes, sir. Once I will put enter, output will display. Yes, sir. What output will be displayed? Rajeshri. Okay, you said so. I am pressing enter key and output is displayed correct. Okay, this is a single line assignment. We have assigned the values to the variable. Now hope you understood this. Next one is the multiple assignment. In multiple assignment, Python allow you to assign a single values to several variables simultaneously. For example, you can write a equal to b, b equal to c, and c equal to 1. Then once you print a, you will get 1. If you print b, you will get 1. If you print c, you will get 1. Here an integer object is created with the value 1, and all three variables are assigned to the same memory location. You can also assign multiple objects to the multiple variable. For example, a, b, c equal to 1, 2 and John. Here two integer objects with value 1 and 2 are assigned. Okay, and to the variable a and b respectively, and one string object value is assigned to the variable c. In a single line directly, a here take value 1 because it is assigned to a, b value will be take 2, and variable c will take the string which is John. So you can write a program for same
and instead of ABC you can write A your contact, B your class, and C your name or address. You can write and send to me. Is it understood to you? Should we check this? Yes, sir. Yes, sir. Is need to check? Okay. You are telling, so we will check here. Bye. Print, or we will take another different variable. A equal to value, we will take value here 12. Okay, for B we will take some value, and C, 3 variable we have taken, 12, 24, and 1 string we are taking. So for taking string we can write also quotation. So in this double quotation we take MGM University. Now how we can print this? Once I press enter, all the values will be stored on the memory location ABC. You see, all these values are stored on the location ABC because we use here assignment operator. Now we want to print this. Then what I have to write here? Print. Yeah. If I write A, comma B and C, what output will be displayed? Yes, you can see the output 1224 MGM University. Is it correct? Yes, sir. Yeah. Yes. Excuse me, sir. Yes. So here we are not supposed to declare the class name, as in for character or integer. Yeah. We can use a single quotation in a other programming language for character, but here in Python we can use single quotation and double quotation for character and the string. Okay, is it? It is same here, but sometime if you need to take only the values from this MGM, suppose from MGM University there is one string MGM University, and you need only the M as a character, you can use, and we will see that in some next lecture how to perform some operation on the character and the string. Okay, but it is similar. Character and string is similar in a Python, but it is different in other programming language. You have to use double quotation, and somewhere you have to use single quotation for character. Is it understood? Yes, sir. Then okay, we will move towards next point. Hope you understood this one. Assignment. Yes. Yes. Then Python identifiers. A Python identifiers is a name used to identify variables, functions, class, or other objects. An identifier start with a letter A to Z or small a to Z or underscore, followed by 0 or more letters, underscore, and
digits. All these characters we can use to write the identifier. To write the identifier in the Python. In Python, identifier is a name used to identify what what you can identify. You can identify variables, you can identify functions. Example of variable is just we use counter, abc, name, like all these are all we were used as a variables. Okay, abc we use as variables. Function, which function we use just now? Yes, which function we use just now in this Python program? Which function we use? You saw this. Yes. Siddhi, which function we use? Yes. Which function we use just now? अभी आपने कौन सा फंक्शन यूज किया था? Am I audible? Yes sir. ओके. प्रिंट यूज किया था ना, तो ये बिल्ट इन Yes, फंक्शन है. function. ये तो फंक्शन है. प्रिंट यूज करने के बाद आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है. और दूसरा कौन सा यूज किया था टू फाइंड आउट द डेटा टाइप? Class. क्लास नहीं, फंक्शन कौन सा यूज किया था राजश्री? डेटा टाइप डिस्प्ले करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया था? फंक्शन मतलब क्या होता है? जो भी आप लिखते हैं ब्रैकेट के पहले और ब्रैकेट में लिखते हैं वेरिएबल, तो वेरिएबल जो है वो एग्जीक्यूट होता है. तो यहाँ पे लिखते हैं आप प्रिंट और ब्रैकेट में देते हैं वेरिएबल. सेम टाइप ऑफ फंक्शन यू हैव यूज जस्ट नाउ. ओनली वी हैव यूज देयर टू फंक्शंस. फर्स्ट वन इज Type प्रिंट. function. Yeah. Type. Type is inbuilt function in Python, and that we can say is a identifier. तो print क्या हो गया? Identifier हो गया. और type क्या हो गया? Identifier हो गया. ये क्या हो गया? Identifier. B identifier. Name identifier. तो जो कुछ भी आप आइडेंटिफाई करेंगे पाइथन प्रोग्राम में, वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस, मॉडल्स और ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए जो कुछ भी कीवर्ड्स लिखे होंगे, और जो कीवर्ड्स जो है वो ए से जेड और स्मॉल ए से जेड तक या 0 से 9 तक अंडरस्कोर यूज करके यूज हुए होंगे. ऑल दीज आर द आइडेंटिफायर्स. ऑल दीज आर आइडेंटिफायर्स. तो क्लास, अभी आपने इसमें क्लास नहीं यूज़ किया था. क्लास मतलब क्या होता है? आपका अगर क्लास है तो आपका क्लास डिफाइन करना है. मुझे तो क्या डिफाइन करना चाहिए? क्या होगा आपका क्लास? कौन सा क्लास है आपका? सिद्धि, आपका क्लास कौन सा है? रिद्धि, Sir, पूजा, in the program. बोलो. So, जो प्रोग्राम यूज किया था उसमें ना, नहीं, क्लास, आपका क्लास कौन सा है? अभी आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? MSc फर्स्ट ईयर. सभी एमएससी के हैं. अगर आपको किसी ने पूछा कि आप कौन से क्लास से है तो क्या बताते? MSc FY कंप्यूटर साइंस. एमएससी कंप्यूटर साइंस. तो अगर
यहाँ पे लिखना है तो आई कैन राइट लाइक दिस MSc CS, राइट? Yes, sir. वी कैन राइट एज MSc CS, ठीक है? अपने पास दूसरे भी क्लासेस है कॉलेज में, MSc IT भी है क्या? MSc IT है अपने यहाँ पे? Yes, sir. कोई पहचान का है स्टूडेंट? कोई पहचान का है क्या आपके IT के क्लास में? नहीं सर। नहीं किस- सर। किसी की भी नहीं? नहीं सर। एक भी स्टूडेंट आप नहीं जानते हो कि जो IT में है? कोई भी नहीं है अभी? सर एक्चुअली कोर्स स्टार्ट हुआ था और हमारा मतलब लॉकडाउन लग गया था, तो फिर एक ही हफ्ता किया हम नहीं, लोगों कोई ने तो भी क्लास। बोला था मुझे लास्ट टाइम में IT का कि वो आपको जानता है। आपसे लेते मैंने बताया था उसको कुछ तो भी, तो वो बोले ठीक है आपसे लेंगे। कौन था मुझे याद नहीं आ रहा। किसी को भी नहीं सर, जानते आप? हमारे जावा के क्लासेस नहीं। साथ में होते थे। हाँ, तो मेरा मेरे- क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है कि आप किसी को एक आधे स्टूडेंट को जानते हैं क्या? ऐसा कोई है अपनी क्लास में कि जो IT के एक स्टूडेंट को जानता है, अभी प्रेजेंट है ऐसा कोई? जावा के जब लेक्चर्स होते थे तो एक लड़का था सर, लेकिन उसका नाम किसी को भी याद नहीं अभी, कि वो लेक्चर्स में भी रेगुलर नहीं था, तो और अदरवाइज किसी के साथ भी कांटेक्ट नहीं है सर। अच्छा, पूजा आपको पता है कोई? नहीं सर। प्रीति, नहीं सर वो रिद्धि, नहीं सर, हमें किसी को भी पता नहीं। किसी को भी पता निखिल नहीं। राज कौन था? कोई तो एक नाम का लड़का था निखिल सर- राज, वो IT का था क्या? निखिल राज तो वो CS का IT है। का नहीं है सर, वो कंप्यूटर साइंस का है, निखिल धृतराज एक कंप्यूटर साइंस है का है सर, सर वो। धनंजय बोल के एक था, उसको यूजुअली हाँ, सर धनंजय, पर्सनली नहीं हाँ, पता, हाँ, बट है वो हाँ, IT में। तो मैं नाम बताता Lectures हूँ में था आपको। धनंजय है और अक्षय है, ज्ञानेश है हाँ सर वो भी था। और हाँ हाँ और अक्षय और प्रतीक्षा है, ऋतुजा है। गौरी आप गिरिमा थी शायद सर, और कोई ऋतुजा हाँ, है हाँ। गिरिमा और गिरिमा कौन? दीपाली, गिरिमा दीपाली, नहीं सर, गिरिमा गरिमा है, राइट, गरिमा हाँ। सिंह है। हाँ सर। तो इसमें से किसी को आप पहचानते हो? नहीं सर। नहीं, तो समझो ठीक है, आप पहचानते हैं। अपन ऐसा कंसीडर करेंगे कि आप पहचानते हैं। तो कैसा? आप तो पहचानते हैं, लेकिन अभी इस कंप्यूटर को कैसे बताएंगे आप? ये जो स्टूडेंट है ये IT के है और ये CS के है, ऐसा कैसे बताएंगे? क्लास में से कॉल करके। अभी तो ये CS का क्लास है, तो सिस्टम को कैसा क्लास समझ में रहेगी आना ना? चाहिए? दो क्लास तो आपका ऑब्जेक्ट थ्रू नेम, स्टूडेंट का नेम रहता है, उसका रोल नंबर रहता है और उसका क्या रहता है? सब्जेक्ट्स होते हैं, नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट्स, ये 3 चीज़ें रहेंगी, ठीक है? और IT के स्टूडेंट का भी नेम, रोल नंबर और सब्जेक्ट्स। अब अपने यहाँ पे और भी है, MSc डेटा साइंस भी है, MSc एनिमेशन भी है। तो जितने भी क्लासेस अपने यहाँ पे होंगे कॉलेज में, वो सभी क्लासेस में क्या है, ये चीज़ें कॉमन है क्या? जितने भी स्टूडेंट होंगे Yes, sir. कॉलेज में, BSc में या MSc में,
सभी को नेम होता ही है, विदाउट नेम वो कॉलेज में स्टूडेंट नहीं बन पाता। सेकेंड थिंग क्या कॉमन है? रोल नंबर। हर एक को रोल नंबर होगा ही होगा। और थर्ड सर थिंग, लेकिन हर एक का रोल नंबर यूनिक होगा ना? नहीं यूनिक होगा, लेकिन रोल नंबर ये फील्ड तो कॉमन होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू अलग होगी, ठीक है, वैल्यू यूनिक होगी, लेकिन ये जो है वेरिएबल ये तो कॉमन होगा ना, रोल नंबर। यस सर। नेम तो होगा, रोल नंबर भी हो गया, अब सब्जेक्ट्स भी हो गए, सब्जेक्ट भी रहेंगे इस ना, हर एक को कुछ ना कुछ सब्जेक्ट हो गए ही ना। यस यस सर। तो ये हो गया एक क्लास। तो ये वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिए किस क्लास के अंडर? किस क्लास के वेरिएबल्स है ये है CS के, ये वेरिएबल है IT के। तो ये जो क्लासेस है, तो ये अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से क्लासेस है, तो उस वेरिएबल के वैल्यू से आपको पता चलेगा। ये वेरिएबल की वैल्यू जो रोल नंबर है उससे आपको पता चलेगा। ये वेरिएबल है सब्जेक्ट, और उसके वैल्यूज़ जो भी वैल्यूज़ होंगे सब्जेक्ट के, मतलब सब्जेक्ट के नाम आएंगे, तो उस वैल्यू से आपको पता चलेगा कि ये कौन सा क्लास है, ये कौन सा क्लास है, और दूसरा कोई होगा तो वो कौन सा क्लास है। यू कैन गेट द इंफॉर्मेशंस थ्रू द वेरिएबल वैल्यूज ऑफ द क्लास। तो क्लास ऐसा डिफाइन करते, तो यहाँ पे आप लिखेंगे MSc और उसके अंडर लिखेंगे ये पूरे वेरिएबल। तो इसको आइडेंटिफाई करना, ये क्लासेस आइडेंटिफाई करना है आपको, तो क्या लगता है आपको? पाइथन आइडेंटिफायर। तो उसका जो नाम है आइडेंटिफायर का नाम, यहाँ पे क्या नाम है आइडेंटिफायर का? MSc CS। तो ये नाम कैसे बन गया है? ये बन गया है A to Z अल्फ़ाबेट इसमें यूज़ हुए हैं, या तो आप यूज़ कर सकते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट A to Z, या तो आप यूज़ कर सकते हैं नंबर, या तो आप यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर। आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ये समझ में आया क्या क्लास आपको? यस सर। ओके। यस सर। तो ऑब्जेक्ट, अगर आपको इसमें कुछ सपोज जो रोल नंबर है आपके, रोल नंबर को आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट का एक डेटाबेस होगा अपने यहाँ पे, डेटाबेस में पूरे स्टूडेंट के रोल नंबर समझो स्टोर्ड है, लेकिन वो रोल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं सपोज अल्फ़ाबेट से B। अगर आपका CS है तो CS1, अगर आपका IT है तो IT1, अगर आपका एनिमेशन है तो एनिम1, अगर आपका BCS है तो BCS1, अगर आपका BCA है तो BCA1, अगर आपका BSc IT है तो BIT1। ऐसे नंबर स्टार्ट होते, तो वो नंबर आपको इसमें लेना है, तो आप लिखेंगे पूरी के पूरे रोल नंबर चाहिए मुझे, ऑल स्टूडेंट के रोल नंबर चाहिए, एक ही बात है। तो इसको करेंगे आप, रोल नंबर को करेंगे ऑब्जेक्ट, और उसको प्रिंट करना है आपको, तो आप लिखेंगे प्रिंट और डॉट रोल नंबर। तो पूरे जो रोल नंबर है वो प्रिंट हो जाएगी, या तो उसको आप कॉल करेंगे प्रिंट के लिए। तो ऑब्जेक्ट ऐसे डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, या तो यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकली उसको भी आप, वी विल सी प्रैक्टिकली दिस। होप आइडेंटिफायर यू आर अंडरस्टूड। इज इट अंडरस्टूड टू यू? यस सर। यस सर। आइडेंटिफायर, तो आइडेंटिफायर कैसा बनता है, उसके कुछ रूल्स है अपने पास। पाइथन डज नॉट अलाउ पंक्चुएशन कैरेक्टर सच एज, ये दिखता है कि आपको? मैं एक बार क्लियर करता हूँ उसको, सॉरी।
now we are going to discuss about how to identify the identifier. और identifier अगर आपको बनाना है, सपोज आपको बनाना है वेरिएबल, तो वेरिएबल का नाम कैसा रखना चाहिए, या आपको बनाना है क्लास, तो हाउ यू कैन राइट द नेम ऑफ अ क्लास. ओके, फॉर दिस we are studying just now. You see, Python does not allow punctuation character such as, what is this symbol? @ Okay, and this one, $. and percent Percentile. within identifier. जो भी आप आइडेंटिफायर लेंगे उसमें आप ये नहीं यूज़ कर सकते. जैसे कि समझो आपने डिक्लेयर कर दिया ये वेरिएबल a@, ऐसा आप वेरिएबल नेम नहीं रख सकते, या क्लास या फंक्शन में यूज़ नहीं कर सकते. एंड परसेंट सिंबल विद इन आइडेंटिफायर. पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस इज नॉट सेम. मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये दोनों थिंग्स अलग है, क्योंकि दिस इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एंड दस मैन पावर and this manpower are two different identifiers in a Python. क्यों अलग है ये? Why these are different? क्यों अलग है? Capital in first one. ये इसका जो यम है और इसका जो यम है, इसमें डिफरेंस है, इसीलिए ये दोनों मैन पावर जो है ये आइडेंटिफायर डिफरेंस है. अगर आप इसको वेरिएबल नेम मैन पावर यम कैपिटल और मैन पावर यम स्मॉल लेंगे तो ये दोनों भी ले सकता है वेरिएबल, लेकिन वो दोनों भी वेरिएबल होंगे, वो अलग अलग वेरिएबल होंगे. सो नेमिंग कन्वर्जन फॉर पाइथन आइडेंटिफायर. क्लास नेम स्टार्ट विथ अपर केस लेटर. क्लास का जो नेम होता है वो जनरली अपर केस लेटर में ही स्टार्ट होता है. ऑल अदर आइडेंटिफायर स्टार्ट विथ लोअर केस लेटर. और बाकी के जो आइडेंटिफायर्स रहते हैं, मतलब वेरिएबल या और कुछ, तो उसके जो स्टार्टिंग होती है दैट इज लोअर केस लेटर. स्टार्टिंग एन आइडेंटिफायर विथ अ सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर इंडिकेट्स दैट आइडेंटिफायर इज अ प्राइवेट. अगर स्टार्टिंग हो रही है, मतलब ए अंडरस्कोर ए वेरिएबल आपने ले लिया है इक्वल टू 10, तो ये जो वेरिएबल है ये प्राइवेट वेरिएबल होता है, तो ये सिर्फ इसी क्लास में एक्सेस हो जाएगा या इसी फंक्शन में ये एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट बना दिया है, प्राइवेट. स्टार्टिंग आइडेंटिफायर विद इन 2 लीडिंग अंडरस्कोर इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग प्राइवेट आइडेंटिफायर. अगर 2 अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है वेरिएबल, तो वो स्ट्रॉन्गली प्राइवेट आइडेंटिफायर होगा. तो आप 2 अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये when you use these 2 underscore, it will be connected. If the identifier also end with 2 trailing underscore, the identifier is a language defined special name. अगर इसका स्टार्टिंग भी और एंड भी अगर अंडरस्कोर से हो रहा है, तो वो आइडेंटिफायर जो है वो लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम होगा. लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम मतलब उसका कुछ तो भी मीनिंग होगा, उसका लैंग्वेज रिलेटेड कुछ तो भी मीनिंग होगा. कभी कभी जब आप समझो अभी
I am talking with you in English, but in some time I am using a Hindi language. So to define that in middle this we have to use like this double quotation, and at the ending also we have to write the suppose we are taking a special language identifier, then there we have to use the underscore at the end. Are you getting my point? समझ में आ रहा है आपको? आवाज आता है कि मेरा? Okay. Then there are some reserved words. पाइथन में कुछ वर्ड है कि वो आप यूज़ नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी उसको पाइथन ने मीनिंग दिए वाला है, पाइथन में वो वर्ड यूज़ किए वाले हैं फॉर लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज बनाने के लिए ये वर्ड यूज़ हुए हैं, सो दैट यू कैन नॉट यूज़ दिस वर्ड फॉर अ डिफरेंट पर्पज़. For what purpose these words are given, only that purpose you can use. जैसे कि and है, not है, or है, pass है, for है, if है, तो ये जो वर्ड है पाइथन ने जिस लिए दिए हैं उसी लिए आप इसको यूज़ करना है. जैसे कि समझो आप if इक्वल टू, ये वेरिएबल नहीं बना सकते आप, if ए, और जैसे कि for इक्वल टू बी, ऐसा वेरिएबल नेम आप नहीं रख सकते. आप a इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, लेकिन if इक्वल टू 10 एज अ वेरिएबल if को आप यूज़ नहीं कर सकते हो. द फॉलोइंग लिस्ट शोज द पाइथन कीवर्ड्स. दीज आर रिजर्व्ड वर्ड्स एंड you cannot use them as constant or variable or any other identifiers name. आप जब प्रोग्राम सेव करेंगे कंप्यूटर में तभी आप ये जो नाम है ये यूज़ नहीं कर सकते हो. ऑल द पाइथन कीवर्ड्स कंटेन लोअर केस लेटर. ये तो पक्का है कि ये जो पूरे कीवर्ड्स है ये लोअर केस में ही है. ठीक है, कितने हैं ये काउंट करो. कितने हैं? हाउ मेनी कीवर्ड्स आर दिस? 30. 30 है. कौन बोला 30 है? क्या नाम है आपका? आपका नाम बोलो. सिद्धि. सिद्धि. तो कौन से है पहले 10 बताइए. And, assert, break, class, continue, if, del, else, elif, else, except. ओके. दूसरे 10 कौन बता रहा है? उसके बाद में 10 कीवर्ड्स जो है वो कौन बता रहा है? आपका नाम बोलो. X is finally for, from, global, if, import, in, is, lambda. ओके. और लास्ट के 10 कौन बता रहा है? So not, or, pass, print, raise, return, try, while, with, yield. तो ये पूरे जो कीवर्ड्स है ऑल आर रिटन इन अ लोअर केस लेटर. तो आपने जिसने भी ये अभी पढ़े हैं तो आप इसमें के जो अननोन है वो कीवर्ड्स मुझे बोलो. पहले जो बताए थे वो रिद्धि ने बताए थे शायद. तो इसमें के आपने कौन से अननोन कौन से है आपके लिए? So, assert, del, assert है. ये सेकेंड वाला Yes, एसर्ट. sir. ओके. और एक ही है. ठीक है. हाँ सर, ये Second- फर्स्ट इसमें एक ही है. हाँ, सेकेंड इसमें किसने पढ़ा था? सेकेंड पूजा ने.
राजश्री राजश्री, हाँ बोलो। एक्सिस और इंपोर्ट इंपोर्ट आपने पहले नहीं यूज़ किया या सुना ही नहीं? यूज नहीं किया सर। अच्छा, इंपोर्ट यूज़ नहीं किया जावा में। लास्ट टाइम तो आपने जावा पढ़ा था, हाँ सर। तो इंपोर्ट तो स्टार्टिंग में ही यूज़ किया होगा ना। वैल्यूज इंपोर्ट करने के लिए। पैकेजेस इंपोर्ट करने के लिए। हाँ, पैकेजेस फ्रॉम लाइब्रेरी, वैल्यूज भी कर प्रोग्राम सकते के स्टार्ट में यूज़ नहीं किया था कि उसको? किया था सर। एक्सिस अच्छा। नहीं। हाँ, और लास्ट किसने पढ़ा था? आपका नाम बताइए पहले। लास्ट लाइन किसने पढ़ी थी अभी? सर मैंने नाम तो बोलो, मुझे दिखता नहीं है यहाँ पे, आपने कैमरा बंद रखा है। रिद्धि। हाँ रिद्धि, बोलो इसमें कौन सा न्यू कीवर्ड्स है जो कि आपने सुना ही नहीं है इसके पहले? रेज। आई थिंक दिस राइज, राइज नहीं सुना था क्या? ओके, सर सुना है, यूज नहीं किया है। यूज़ नहीं किया है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ठीक है। ऑल दीज आर 30 कीवर्ड्स which is reserved in Python, so don't use all these keyword as a name or variable or constant. आप इसको ऐसा, इसके अलावा दूसरा यूज़ इसका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको पूरे जो वेरिएबल्स है, ऑल दीज वेरिएबल हैविंग अ मीनिंग इन अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स वर्किंग इज देयर। अगर आप इफ़ एल्स यूज़ करते हैं, अगर आप डिफ यूज़ करते हैं या डिफाइन यूज़ करते हैं, रिटर्न यूज़ करते हैं, ट्राई या यील्ड, देन देयर इज अ मीनिंग इन द दिस library. So there are 30 keywords you have seen. We use all these step by step, example by example, so don't bothered about that or worry. Now the basic style guidelines. In Python script, the symbol, this symbol indicates the start to a comment line. Start on a comment line. It is effective till the end of the line in the editor. ये इसके पहले आपने शायद सुना है हैश, अपने ही लेक्चर Yes, में हुआ क्या ये? हैश sir. यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? इसका क्या यूज है हैश का? सर कमेंट के लिए बोल रहे थे आप। हाँ, कमेंट। और सर सी में जब हम लाइब्रेरी लेते हैं ना, विदिन लाइब्रेरीज, हाँ, वहाँ से इंक्लूड अच्छा। वगैरह वहाँ पे। ओके, लेकिन अभी पाइथन में इसको यूज़ करते हैं आप कमेंट देने के लिए। जो कुछ भी आप हैश के बाद लिखेंगे वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद हैश के बाद आप कुछ भी लिखो, एडिरेट लिखो, सिंबल लिखो, इफ लिखो, कुछ भी लिखो, वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो कमेंट देने के लिए आप क्या करते हैं? हैश यूज़ करते हैं। जैसे कि समझो आपको लिखना है ए इक्वल टू 10, तो ए क्या है? ए यहाँ पे है वेरिएबल, तो आपको लिखना है यहाँ पे ऐसा, तो आप हैश यूज़ करना है वेरिएबल, ठीक है। अगर मल्टीपल लाइन कमेंट करना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा? ये हो गया सिंगल लाइन। अब ये इस लाइन में कहाँ तक भी लिखो आप, तो एंड तक जो कुछ भी लिखा है हैश के बाद, दिस विल नॉट बी एग्जीक्यूट इन अ पाइथन, ओके, इट विल नॉट एग्जीक्यूट। लेकिन अगर नेक्स्ट लाइन में जा रहा है हैश के बाद तो ये एग्जीक्यूट होगा, फिर से आपको हैश यूज करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल,
हैश, दिस इज कमेंट, प्रिंट हेलो वर्ड। अब ये प्रोग्राम यूज किया है हेलो वर्ड का। प्रिंट वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल एंड उसके बाद लिखा है कमेंट हैश आफ्टर स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर दिया तो आउटपुट क्या आएगा? सर आउटपुट कुछ नहीं आएगा बिकॉज दिस इज ऑल इन अ कमेंट। आएगा, कमेंट में आ गया वो। ठीक से देखिए। सर वेलकम टू पाइथन ट्यूटोरियल बिकॉज सर हेलो वर्ल्ड भी आएगा और Print. वेलकम पाइथन नहीं। ट्यूटोरियल भी वेलकम आएगा। हेलो वर्ल्ड आएगा, ठीक है, पहला हेलो वर्ड आएगा। दूसरे यहाँ पे वेलकम टू टू पाइथन पाइथन ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल भी आएगा सर बिकॉज आएगा। कमेंट उसके हैशटैग उसके बाद है। उसके बाद हैश है और उसके हाँ, बाद तो ये कमेंट लाइन आपके भी। स्टेटमेंट वो नहीं आएगा, नहीं आएगा हाँ, सर। उसके पहले का नहीं होगा मतलब कमेंट अगर आपने यहाँ से यहाँ तक अगर एग्जीक्यूट करने की कोशिश की तो इसमें एरर आएगा, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा आपके प्रोग्राम को कि ये क्या है, ये क्या है। हाँ स्टेटमेंट Simply इज say- इसको अगर So, मुझसे प्रिंट दो- करना वो है, नेक्स्ट लाइन में है ना, तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता। हाँ, तो ये प्रोग्राम को समझ में नहीं आएगा। पाइथन विल नॉट अंडरस्टूड दिस, सो देयर विल बी एरर। अगर इसको एग्जीक्यूट करना है, ये लाइन में नहीं बैठा है, तो फिर से आपको यहाँ पे हैश यूज करना पड़ेगा, देन यूर आउटपुट विल बी डिस्प्ले। तो इसको रन करके देखने की कोई ज़रूरत है? नहीं सर। No, sir. ऑल यू नो दिस। Yes. In Python, there is no provision to write multiple line comment or a block comment. For multiple line comment, each line should have the hash symbol at the start. Multiple line में भी आपको पूरे लाइन में हैश यूज करना पड़ेगा अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट करना है तो। दूसरा है triple quoted multiple line string is also treated as a comment if you not doctoring of a function or a class. अगर आपको ये ऐसा 3 डॉट ट्रिपल कोटेशन अगर आपने यूज़ की है तो वो भी कमेंट हो जाता है। मल्टीपल लाइन को अगर आपको कमेंट करना है तो 3 कोटेशन आपको यूज़ करने पड़ेंगे। आप 3 टाइम डबल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखना पड़ेगा आपको, है ना? Yes, sir. ओके, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं अभी। तो देखिए, समझो आपने लिखा है स्क्रिप्ट लेते अपन। इसको अपन सेव करेंगे अपने पाइथन प्रोग्राम। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने MJMU में MSc CS में पाइथन प्रोग्रामिंग और ठीक है, यहाँ पे इसको सेव करेंगे अपन। कमेंट 5 comment_5.py इस नाम से इस प्रोग्राम को आप सेव कर रहे हो। इसमें लिखा है, समझो आपने प्रिंट वेलकम
तो अभी इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? दिखता है क्या आपको ये? हाँ, आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा? वेलकम ही आएगी। वेलकम। सही में देखते हैं रन करके। हाँ राइट, यू सेड वेरी ट्रू, वेलकम डिस्प्ले हो गया है। अच्छा, अब अपन करते हैं प्रिंट। और फिर से यहाँ पे लिखते हैं डबल कोटेशन में हैव अ गुड डे। हैश का भी यूज़ करेंगे। इसका क्या आउटपुट आएगा अब? और ऊपर की लाइन में वेलकम और पीछे की लाइन में हैव अ गुड डे आएगा? देखते हैं क्या आप सही बोल रहे हैं। सेव कर दिया और रन कर दिया तो वेलकम हैव अ गुड डे आ गया। एक कमेंट के बाद में कैंसिल हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे लिखते हैं यू ऑल आर और यहाँ पे लिखते हैं 3 कोटेशन सिंगल कोट। इसका क्या आउटपुट आएगा? नहीं आएगा आंसर। कुछ भी नहीं आएगा। ये प्रोग्राम है पूरा, यहाँ से स्टार्ट हो गया। वेलकम और हैव अ गुड डे नीचे की लाइन में, बस थर्ड लाइन नहीं आएगी। वेलकम हैव अ गुड डे एंड एरर। सर एरर नहीं आएगा, लेकिन थर्ड लाइन आएगी, प्रिंट ही नहीं होगी सर। नहीं आएगा एरर। देखते हैं अपन एरर आता है क्या। नहीं आया एरर, आपने सही बताया। यू सेड वेरी ट्रू, सो यू आर ब्रिलियंट। दिस शुड लाइन शुड, ये लाइन प्रिंट होना चाहिए था। आपने सही बताया। अब देखते हैं, अगर समझो आपको फिर से लिखना है प्रिंट और यहाँ पे लिखना है
पहले यहाँ पे कोटेशन किया था, इसको यहाँ से निकाल देते हैं, निकाल दिया है। इस 3 डॉट को लिया है मैंने यहाँ पे। इसका आउटपुट क्या आएगा अब? अभी बताओ। सर अभी एरर आएगा। एरर आएगा? तो पहले वेलकम और हैव अ गुड डे प्रिंट होगा, तो ये यू आर ब्रिलियंट ये नहीं प्रिंट होगा, बट ये थर्ड वाले का आई गेस यू आर ब्रिलियंट ही प्रिंट होगा। लास्ट लाइन में क्या आएगा? एरर आएगा? क्या प्रिंट होगा? सर आई थिंक यू आर ब्रिलियंट प्रिंट होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। तो देखते उसको हैं। सर तीन या 2 है, ब्लर हो रहा है सर स्क्रीन का। एरर आएगा? प्रेजेंट पर सिर्फ 3 है ना सर? नहीं सर, तो यूआर को डबल इन्वर्टेड कॉमा है क्या? हाँ, यू आर को डबल कोटेशन है, और प्रेजेंट को ट्रिपल सिंगल कोटेशन है, और ब्रिलियंट को फिर से डबल कोटेशन है। तब तो सर फिर यूआर और ब्रिलियंट प्रिंट होगा स्पेस देके। तो देखना है, फिर से देखते हैं। यस, ये तो पूरा प्रिंट हो गया। यहाँ की स्पेस भी नहीं आई इसमें, ये तो स्पेस कैसे नहीं आया? अब फिर से देखते हैं, इसको यहाँ से निकालते हैं और यहाँ पे देते हैं सिंगल कोट। अब क्या आएगा? इसको निकालता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ, अब बताओ क्या आएगा? यू आर ब्रिलियंट प्रिंट होगा सर। देखते हैं। यू आर ब्रिलियंट प्रिंट हो गया। यस सर। अब इसके जगह पे आप यहाँ पे ऐसा करेंगे, अब क्या होगा? सर सिर्फ वेलकम और हैव अ गुड डे प्रिंट होगा, ये दोनों कमेंट में चले जाते हैं। पहले 2 लाइन ही प्रिंट हो गए। हाँ यस। क्या एरर आएगा यहाँ पे? तो आप इसको कमेंट डबल कोटेशन में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कमेंट करके, अब क्या होगा? अब कुछ भी नहीं आएगा, इनवैलिड सिंटैक्स आ गया। तो ये एक ही लाइन में आपने कमेंट करके देखा था। अब यहाँ पे फिर से आपको देखना है। अब क्या आएगा? ये लास्ट लाइन का क्या आउटपुट आएगा? यूआर ब्रिलियंट। प्रेजेंट आएगा क्या? नहीं फंक्शन के इनसाइड है तो, ये फंक्शन के इनसाइड है तो प्रिंट होगा, ठीक है।
तो ये 3 और डबल लाइन का कभी कभी आपको यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि समझो आपने a इक्वल टू 10 लिया है, b इक्वल टू 20 लिया है, अब आपको प्रिंट करना है। अब इसका क्या आउटपुट होगा? 10. 10, 20, उसके बाद ये मैसेज आएगा। हाँ, वो वेलकम हैव अ गुड डे दिया। अगर आपको इसको अब कमेंट करना है और इसको यहीं पे ख़त्म करना है, तो अब क्या आएगा इसका आउटपुट लास्ट लाइन का? एरर भी डिक्लेयर नहीं हुआ है तो मे बी एरर आ सकता है और सिर्फ यू आर ब्रिलियंट प्रिंट होगा। अच्छा, तो एरर ही आ गया, आपने बराबर बता दिया। तो ये कमेंट हो गया। मल्टीपल लाइन अगर कमेंट करना है, इंस्टेड ऑफ दिस इफ वी राइट लाइक दिस, अब क्या होगा? सेम एरर। तो आप सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन नेक्स्ट लाइन के नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। A triple quotation multiple line string is also treated as a comment if it is not a doc string of the function or a class. डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग अगर नहीं होगा तो ट्रिपल लाइन या डबल कोटेशन है, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन 3 टाइम अगर आप यूज़ करते हैं, इट विल बी कमेंट। Is it understood to you? Yes, sir. Okay. Then we will move towards next point, memory management. ये थोड़ा सा theoretical part है, इसको ख़त्म कर देते हैं और stop करते हैं, चलेगा? इस right, we will start memory allocation. Memory allocation is essential part of the memory management. ये memory allocation बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए फॉर डेवलपर। अगर आप प्रोग्राम डेवलप करना चाहते हो, आगे जाके आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो पाइथन में, तो आपको मेमोरी मैनेजमेंट आना चाहिए। जो कुछ भी आप डेटा स्टोर करेंगे, अगर उसको आप प्रॉपरली मेंटेन करेंगे तो आपके सॉफ्टवेयर में कोई बग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और प्रोग्राम जो है फास्ट एग्जीक्यूट होगा। दिस प्रोसेस बेसिकली अलॉट फ्री स्पेस इन अ कंप्यूटर वर्चुअल मेमोरी। कंप्यूटर के वर्चुअल मेमोरी में फ्री स्पेस अलोकेट करती है। एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्चुअल मेमोरी वर्क्स व्हाइल एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। 2 टाइप के
वर्क्स होते हैं उसमें। वर्चुअल मेमोरी के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, दूसरा है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अभी देखिए, समझो ये जो मेमोरी लोकेशन यहाँ पे लिखे वाला है कीवर्ड, इज इट विजिबल टू यू? टाइटल Yes, sir. ओके। दिस ये क्या है, इसको पढ़ो। Static memory allocation. स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। उसके नीचे क्या है? रेड Dynamic memory रेड allocation. लाइन है ना? Yes. हाँ, तो ये कहाँ पे स्टोर है अभी? ये पीपीटी तो ठीक है, हार्ड डिस्क में सेव करके रखी है मैंने, लेकिन ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये कहाँ पे है? स्टैटिक मेमोरी में सर, क्योंकि जो वो परमानेंट नहीं रहती है, मतलब टेम्पररी रहती है। हाँ, वर्चुअल memory। मेमोरी में है। ये जो है virtual memory। वर्चुअल मेमोरी में है, रैम में है। इसको अभी अपन ने सेव नहीं किया है। सेव करने के बाद उसको अगर आप लोकेशन देंगे हार्ड डिस्क का, तो फिर वो परमानेंट लोकेशन पे चले जाएगा डेटा। अभी जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर लोड करते तो वो कहाँ पे आता है? रैम पे आता है, और वर्चुअल मेमोरी में आपको दिखता है। आपके कंप्यूटर की अगर रैम, आपके पास कंप्यूटर है? कंप्यूटर है क्या आपके पास? है सर। कितनी रैम है उसकी? 8 GB है। मोबाइल की? जो चली बोलो। 3 सर। 3 है, लेकिन आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में डेटा तो बहुत सारा होगा, लेकिन सिर्फ रैम जो है 2 GB, 4 GB, 8 GB की रैम है। तो आप जब मूवी देखते हैं तो मूवी की साइज़ जनरली कितनी होती है? 100 MB के ऊपर ही होती है। तो वो जो डेटा है, पूरा क्या पूरा डेटा एक साथ लोड नहीं होता, उसको स्टेप बाय स्टेप लोड करते हैं। तो वो लोड करने के लिए आपको रैम लगती है और वर्चुअल मेमोरी भी लगती है। तो उसके 2 टाइप होते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया तो आई विल अगेन एक्सप्लेन टू यू हाउ इट विल वर्क। क्या अभी बताना है? ठीक है, अभी बता देता। समझो ये है आपका हार्ड डिस्क और ये है आपकी रैम। तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, इस हार्ड डिस्क में बहुत सारा डेटा है। तो इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो यह रैम पे पूरा का पूरा डेटा नहीं बैठता है। जब आप समझो प्रेजेंटेशन ओपन कर रहे हैं, अभी मैंने ये प्रेजेंटेशन ओपन कर दिया, तो अभी आपको दिख रहा है स्टार्टिंग पॉइंट मेमोरी एलोकेशन और एंडिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे? ये 12 है ना? ये 12 दिखता है क्या आपको? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो स्टार्ट हो गया इस मेमोरी से और एंड हो गया यहाँ पे। तो इतना ही कंटेंट अभी रैम पे है, इतना ही कंटेंट इसमें दिख रहा है। बाकी की जो पहली पीपीटी और लास्ट वाली पीपीटी है वो कहाँ पे है? अभी हार्ड डिस्क में स्टोर है। जब मैं बटन प्रेस कर दूंगा तो ये चला जाएगा हार्ड डिस्क में, यहाँ का दूसरा कंटेंट आएगा यहाँ पे। पहला जाएगा हार्ड डिस्क में, फिर से नेक्स्ट, फिर से हार्ड डिस्क, फिर से नेक्स्ट। तो ऐसा डेटा जो है डिस्प्ले हो जाएगा आपका वर्चुअल मेमोरी और रैम पे। फिर देखिए, जिस डेटा पे अगर हम आप वर्किंग है, साइमल्टेनियसली बहुत कुछ डेटा टैब
अगर ओपन करते हैं तो जो भी आप देख रहे हैं अभी वही दिखेगा, जो बाद में का जो है वो तो अभी ये तो डिस्प्ले ही नहीं हो रहा ना, दूसरे टैब अभी यहाँ पे तो दूसरे दिखते ही नहीं है। तो वो कहाँ पे है, वो चले गए वापस। और मेमोरी के दो टाइप होते हैं वर्चुअल मेमोरी के, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अब स्टैटिक जो कि चेंज नहीं हो सकता, जैसे कि C++, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप डिक्लेयर करते हैं INT ए इक्वल टू उसको लिख देते हैं कुछ भी 10, 20, तो ये वेरिएबल जो है ए वेरिएबल उसको तो आपने वैल्यू असाइन कर दी और उसको डेटा टाइप भी डिफाइन कर दिया, तो वो चेंज नहीं होगा, इट विल नॉट चेंज। 10 कहीं पे भी जाओ आप तो ए की जो वैल्यू है 10 ही प्रिंट होगी और वो इंटीजर ही होगी, इंटीजर ही रहेगी। लेकिन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होगा, वो जो ए की जो वैल्यू है वो चेंज होते जाएगी और वो जो मेमोरी एलोकेशन है वो डायनामिक रहेगा। मतलब वो कभी इंटीजर है तो वो चेंज भी हो सकता है, कास्टिंग भी हो सकता है, उसका डेटा टाइप का कन्वर्जन भी हो सकता है। मतलब अगर ये डेसिमल नंबर है या ये इंटीजर नंबर है तो फ्लोटिंग भी हो सकता है। तो देखिए अभी समझो अपन पाइथन में चले गए, यहाँ पे प्रोग्राम पे अभी समझो मैंने यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू 10.5, ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा अब, a इक्वल टू 10.5 लिखा मैंने, प्रिंट कर दिया a, तो अब आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, बोलो, एम आई ऑडिबल, है क्या कोई, प्रीति, प्रीति, यस सर। बाकी स्टूडेंट ज्वाइन है क्या, चले गए, यस सर। है क्या ज्वाइन। हाँ, इसका आउटपुट क्या आएगा फिर, ये दिखता नहीं क्या लास्ट लाइन, 10.5 10.5 हाँ, तो इसका आउटपुट होगा 10.5। क्यों, क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है, ये क्या डेटा टाइप है इसका, ये देखेंगे अपन अभी। तो इसका डेटा टाइप है फ्लोट, ठीक है। अगर इसको आप लिखेंगे अब प्रिंट, now we are writing suppose b equal to int a,
अगर समझो आपको इसका जो डेटा टाइप है int a=10 ये स्टैटिक है। अगर इसका जो कन्वर्जन करना है दूसरे मेमोरी एलोकेशन को, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेटा टाइप का कन्वर्जन करना पड़ेगा। वी विल सी दिस इन नेक्स्ट। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो बोलो। मेमोरी मैनेजमेंट का रिवीजन और ये जो है कन्वर्जन का डायनामिक स्टैटिक, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। अभी अपन यहाँ पे स्टॉप करते हैं, चलेगा? यस सर। तो कितने बजे अभी? हाँ, अपने पास फिर भी 10 मिनट है, तो आपको कैमरा ऑन करना है। देखना है मुझे कौन कौन ज्वाइन हो गए। So thank you very much. Have a nice day.